Hi friends, welcome on Europedia and this video is related to the job opportunities of material managers in a very prestigious Maharatna company Coal India Limited. So if you are mechanical or electrical engineer with MBA and 60% in graduation, and I don't think any job experience is required, but if you have these degrees with MBA, you are eligible for this job. Now the syllabus of material management actually is not mentioned for Coal India, but previously this exam was conducted and the detailed syllabus was designed by Europedia, and we have already made that video for the syllabus. Now this video is related to the terminologies which material management has, और terminologies का video इसलिए important था because अगर आपको terminologies का पता लग जाए, I'm not going to teach you in detail what is ABC analysis, what is inventory management, what is economic order quantity, उसके अलग से videos हैं उसका अलग से classes होंगी, but in one video, in one lecture, if you get to know that what you are going to study not syllabus but little idea in the form of terminologies, that as material manager I am going to discuss these terminologies, I am going to be in touch with these terminologies. तो आपको अपना preparation will be very smooth, you will get to know that this is how you have to prepare. Before I go forward, let me tell you friends, Europedia is the only platform which provides the this content for material management position of Coal India Limited, and this is the best module, and I think we have a lot of selections in the previous exams of material management in Coal India Limited. And in case you want to shift from corporate sector to government sector, Maharatna company Coal India Limited you want to get into, and आपके पास ग्रेजुएशन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंड MBA, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजीज का, और ये आपका कोल इंडिया लिमिटेड का जो जॉब अपॉर्चुनिटी निकला, एडवर्टाइजमेंट नंबर इज 1, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ही 2025 में आप लोगों के लिए निकला है, और ये इसकी रिक्वायरमेंट है. इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास चाहिए, 2 साल का MBA या डिप्लोमा विद 60% मार्क्स इज रिक्वायर्ड. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा. यू कैन प्रिपेयर थॉरली विद मेंटर्स ऑफ Europedia and minimum marks obviously you have to take it. and अच्छी बात ये है that age unlike many PSUs जहाँ पे 26 क्राइटेरिया लग जाता है एज का, यहाँ पे आपके पास एज क्राइटेरिया है, that means till 30 year you can apply in this particular job. so start करते हैं फ्रेंड्स अपना आज का वीडियो जो है वो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मटेरियल मैनेजमेंट. इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड. सो पहले तो कोर कंसेप्ट्स में चलते हैं. मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, ये डॉक्यूमेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू फॉर वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स एंड देन वी गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट. सो मटेरियल मैनेजमेंट एक्चुअली इज द नथिंग बट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, जितनी भी एक्टिविटीज हैं विच आर रिलेटेड टू फ्लो ऑफ द मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज आर द नेम्स ऑफ दैट. सो यू हैव टू डील विद प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, and then eventually procurement, purchasing something, storing that, inventory, then handling of that, and then distribution. So these terms which I am telling you, this is material management. So and the material management is nothing but flow of material. तो material किसको बोलते हैं? Material can be your raw material or it can be finished product, anything. It can be the raw material, जैसे आपने कोई raw material लिया, steel लिया आपने, and then you made something out of that. So that is the handling of the material. परचेज करने से, वेंडर से परचेज किया, प्रोक्योर किया, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको यूज किया, that everything is material management, and these are the activity which as material manager you have to do. इसका सारे के सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे. सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, एंड दैट इंक्लूड्स एंटायर फ्लो ऑफ द गुड्स, रॉ मटेरियल टू एंड प्रोडक्ट, all the activities are involved in this, and we will be discussing about how the supply chain is managed. Supply chain means how the supply is going on, what are the chain of activities, so from where something is coming and where it is going, what value you are adding on the way, and what resources are consumed on that, वो सारे का सारा supply chain है. It is a very broad term actually. Procurement is to purchase goods or services from other sources, external sources, that is basically called procurement. And then come the terms like contract and supplier and vendor. The person जहाँ से आप खरीदते हो, they are called vendor or supplier. Vendors or supplier will give you something, so you will purchase either product or service from them, so they are called supplier, and you have to sign contract with them.
sourcing, so basically selecting the suitable vendor or supplier based upon their price, quality, reliability, sustainability, all these factors, credibility, you know, how trustworthiness you have. So you will outsource the things. Outsourcing, I mean giving some activity to some third person outside the organization, that is called outsourcing. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री इज द स्टॉक पाइल, जो भी तुम जोड़ के रखते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, समथिंग विच इज केप्ट एट योर प्लेस. टिपिकल एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री इज लाइक, यू नो, आपके घर में जो वेजिटेबल्स रखी होती हैं, फ्रिज के अंदर जो चीज़ होती है वो इन्वेंट्री होती है. तो फ्रिज, वट एवर यू आर कीपिंग इन द फ्रिज, दैट इज इन्वेंट्री, चाहे वो आपका वेजिटेबल्स है, चाहे कुछ भी है. अगर सोचो आपको फ्रिज की रिक्वायरमेंट ना हो कि अभी वेजिटेबल आया, अभी बनाया, खाया, खत्म कर दिया, तो आपको एक फ्रिज के स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. बट इन्वेंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम टू, यू नो, गेट द थिंग्स, राइट. रात को आपको चाय पीने का दिल किया, तो रात को दूध कहाँ से लाओगे आप, तो फ्रिज को के अंदर आपने रखा है, इन्वेंट्री रखा है. सो इन्वेंट्री इज समथिंग विच यू स्टोर. अब इन्वेंट्री का लेवल कितना होना चाहिए, कैसे उसको प्लान करना है. इन्वेंट्री शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस. टिपिकली इफ आई आस्क यू हाउ मच मिल्क शुड यू कीप इन इन्वेंट्री इन द फ्रिज, उससे जितना चल जाए, एक दिन का साइकिल है आपका, एक दिन का, अगले दिन दोबारा ले आएंगे. एंड अदर देन मिल्क, शेल्फ लाइफ मिल्क का एक दिन है, शेल्फ लाइफ एक दिन के बाद खराब हो जाएगा. बट देन देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कीप इन द फ्रिज फॉर 4 days, 5 days, 6 days, एंड देन देर आर सर्टन थिंग्स विच फॉर मंथ्स, लाइक राइस. राइस आप मंथ्स के लिए, शुगर यू कीप फॉर मंथ्स, सॉल्ट यू कीप फॉर मंथ्स. तो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है इन्वेंट्री आप किस तरीके से रखेंगे. तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, because resource gets consumed in this. Logistic is nothing but, you know, to entire process of planning, implementing, controlling the things, that is called logistic. So ये सारे के सारा काम को करना लॉजिस्टिक्स है. लॉजिस्टिक्स में जो इसको प्लान कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, सो सारे के सारा काम वो लॉजिस्टिक्स में आ जाता है. रिवर्स लॉजिस्टिक मीन्स, यू नो, when customer is returning the goods to you. I give you the example of logistics and reverse logistic. You know, one of the best example of the logistics is Amazon, which is commerce companies. E-commerce की फील्ड में बहुत सी कंपनीज अब आ गई हैं. Amazon is one of the examples. So when you purchase something from Amazon, there will be someone who will be packing it and sending it to you. You will be receiving it. That is logistics. You know, taking the something from Amazon does not produce itself. It is only a logistic company. I mean, it is taking some product from somewhere and selling it to you. और बीच में अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है आपको प्रोक्योर करवाने का जो कॉस्ट है, दैट इज इनकर्ड ऑन Amazon, दैट दे टेक इट. सो लॉजिस्टिक इज लाइक व्हेन यू परचेज समथिंग फ्रॉम Amazon. रिवर्स लॉजिस्टिक इज लाइक यू वांट टू रिटर्न इट टू Amazon, लाइक आई डोंट वांट इट एंड आई वांट टू गिव इट बैक. तो आजकल जो कॉमर्स कंपनीज हैं वो आपको देती भी हैं और आपसे वापस भी लेती हैं, राइट. जोमेटो, Blinkit or Amazon, all these companies are logistic companies and reverse logistic companies. Global positioning system is to track, you know, shipment and everything, that is GPS. Inventory में आप ABC analysis करते हैं. The entire products, the goods or products are categorized into 3 categories: A category, B category, C category. A category में those items which are basically very very high value, उनकी क्वांटिटी कम. सी में वेरी लेस वैल्यू बट क्वांटिटी इज मोर. घर में आपने जो ज्वेलरी रखी है, दैट इज ए टाइप, और जो शूज़ रखे हैं या आपने जो वेजिटेबल्स वगैरह रखा है, दैट इज सी टाइप, और जो लैपटॉप वगैरह रखा है, टीवी रखा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, वो बी है. सो ए बी सी आपने लो वैल्यू हाई क्वांटिटी, हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, ऐसे यू हैव सेग्रीगेटेड. तो उसमें हेल्प होता है आपको टू फाइंड आउट द मेथड हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री एंड हाउ मच एफर्ट यू शुड पुट टू टेक केयर ऑफ दैट इन्वेंट्री. जैसे कैश है, ज्वेलरी है, उसको तुम्हें अलमीरा में रखना पड़ता है, सेफ रखना पड़ता है, दैट इज ए आइटम्स. सी आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स, अनियन, यू नो, योर शूज, योर क्लोथ्स, सी आइटम्स. तो दैट इज नॉट मच केयर इज नॉट टू बी टेकन. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट मीन्स व्हेन वी पुट सम ऑर्डर फॉर परचेजिंग समथिंग, देन व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड व्हाट इज द होल्डिंग कॉस्ट. जब हम कुछ चीज़ मंगवाते हैं हमें घर में रखनी भी पड़ती है वो. तो जैसे मैं आपसे टिपिकली पूछा था कि मिल्क आप दिन में एक ही बार लाते हो, एक बार जाके मिल्क लाने का खर्चा कितना आया और मिल्क को रखने का खर्चा कितना आया, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. सपोज मैं बोलता हूँ कि जब आपको चाय पीनी होगी तो मिल्क दुकान से ले आना, तो आप बोलोगे मेरा टाइम भी तो लगेगा दुकान में जाने का. आई विल गो टू द शॉप, आई विल ब्रिंग इट. इफ नॉट मनी, एटलीस्ट माई टाइम इज गेटिंग इन्वेस्टेड.
So economic order quantity means how much quantity I should order so that it मेरे लिए वो cheap पड़े. ये भी इन्वेंट्री से रिलेटेड कंसेप्ट है. जस्ट इन टाइम जब रिक्वायरमेंट हो तभी आप कोई चीज लो, इन्वेंट्री ना रखो, जीरो इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल होता है कि जो अभी बेसिक मटेरियल है जिसके ऊपर अभी आपने प्रोडक्शन करना है, जिसकी वैल्यू बढ़ानी है. तो एंड प्रोडक्ट इज द फाइनल व्हेन इट गोज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. रॉ मटेरियल इज व्हेन इट एंटर्स. तो एंट्री टू एग्जिट आप उसकी वैल्यू एनहांस करते हो. वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स, प्रोसेस मीन्स इट इज अंडर गोइंग द प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ा होता है, तो आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया, आपने उसकी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया, तो वर्क इन प्रोसेस है. फिनिश्ड गुड मीन्स जब बन के तैयार हो गया. MRO मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन. मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही एक रेगुलर प्रोसीजर होता है इंडस्ट्री के अंदर. तो आइटम्स जो जिनकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड आप उनको पकड़ते हो, तो मेंटेन करते हो, रिपेयर करते हो और फिर उनको यूज़ करते हो, उनके ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हो. तो ये MRO भी एक बेसिकली टेक्निकल वो एक टर्म है जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइक जो भी चीज़ पहले आएगी वो पहले जिसके ऊपर काम होगा. इन्वेंट्री आइटम्स आर सोल्ड फर्स्ट. सो जो पहले आया है उसके ऊपर पहले ऑपरेशन होगा. अगर आप पहले आए हो तो आपको पहले सर्विस मिलेगी. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. समटाइम इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले सर्विस देनी है. कानबान सिस्टम होता है बेसिकली विजुअल सिस्टम, जो प्रोडक्शन फ्लो के साथ साथ आप उसको इन्वेंट्री मैनेज करते हो. विजुअल सिस्टम टू मैनेज द इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन फ्लो. कानबान हम डिटेल में पढ़ेंगे. कानबान सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लो ऑफ द बेसिकली प्रोडक्ट व्हेन इट इज गेटिंग द सर्विस. सो प्रोडक्शन फ्लो से रिलेटेड है. और लीन मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो वेस्टेज मिनिमम होना चाहिए. आपका ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना है, आपको मिनिमम वेस्टेज के साथ आपको प्रोसीड करना है. दैट इज अ कानबान सिस्टम. देन सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक विच यू शुड कीप सो दैट देर इज नो डिसरप्शन ऑफ द सप्लाई. आप मिनिमम कितनी इन्वेंट्री रखोगे कि घर में कोई गेस्ट आ गया तो उसको चाय के लिए तो दूध होना चाहिए थोड़ा सा. सो दैट इज बेसिकली द सेफ्टी स्टॉक. मिनिमम अमाउंट, अगर कोई अर्जेंसी आ जाए तो सर्विस ना रुके. लीड टाइम होता है कितना टाइम लगेगा अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड यू गॉट द थिंग्स. लीड टाइम इज कि कितनी देर में दूध आ जाएगा. मेरे को लगता है आधा घंटा लग जाएगा, मेरे को शॉप पे जाना है, देन आई एम टू ब्रिंग इट. दैट इज कॉल्ड लीड टाइम, द टाइम इट टेक्स टू गेट द थिंग्स. होल्डिंग कॉस्ट मीन्स आपको रखने का जो खर्चा आता है. समटाइम यू आर टू हैव अ स्टोर के आपको रेंट देना पड़ रहा है. यू आर टू पे द रेंट फॉर द स्टोर. आपने एक गार्ड रखा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो होल्डिंग का भी खर्चा हमें पड़ता है. ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आप ऑर्डर को रिसीव करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पड़ती है. ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स जितना भी खर्चा ऑर्डर से रिलेटेड है कि मैंने अभी कोई चीज़ को परचेज करना है तो मैंने ऑर्डर बनाना है उसका, फिर मैंने उसको जाके लाना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा. सो एवरी टाइम व्हेन यू ऑर्डर देयर इज अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट. अब ये दो तरह की कॉस्ट होती है. वन इज होल्डिंग कॉस्ट, अनदर इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू maintain the things which you have purchased, and ordering cost is some cost incurred on placing the order and getting that particular thing, right? Stock out cost means अगर suppose आपके पास कोई सामान नहीं है और कस्टमर आया और आप दे नहीं पाए तो you tend to lose the customer itself. So that is called basically the stock out cost, losing the customer. Just imagine आप एक फार्मा शॉप चला रहे हैं एंड कस्टमर कम्स एंड यू डू नॉट हैव मेडिसिन, बिकॉज अगर आपने सारी मेडिसिन रखनी है तो आपको होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी. आपने उनको पैसा दिया होगा फार्मा कंपनीज को. सो कस्टमर कम्स 2-3 टाइम्स एंड ही सीज दैट आपके पास सामान नहीं होता. एवरी टाइम व्हेन ही कम्स यू डू नॉट हैव द मेडिसिन इन योर शॉप, सो यू विल लूज द कस्टमर ऑलवेज. सो दैट इज द स्टॉक आउट कॉस्ट. प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. So whenever you want something from the supplier or vendor, you will request him to quote the price. So specific service के लिए he will quote the price. So that is basically request for quotation. That is what it is called. Request for proposal. When you say okay, send me the proposal. जब भी whenever you want to take the service from some vendor, you'll send okay, send me the quotation. So that is called request for proposal. Request for quotation. That is how it is done. Request for information. So request for information is document to get the information from potential supplier. So friends, all these things are like from the vendor or supplier. There is a small difference between vendor and supplier, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. लेकिन whenever you want to outsource something or you want to take
some kind of service from some supplier or vendor, then you request for some kind of quotation which has some cost. For proposal, what is your proposal? It may not be monetary. Request for information, data. So proposal is like what you want, how do you want to do service, and quotation means cost, and information means give me the input, only I need information from you. So this is you take from vendor or supplier. Then there is a supplier relationship management, and that is something which you have to manage, and you need to have strategic supplier. There is a term called strategic supplier, strategic vendor. That means long term relation इन लोगों के साथ आपके रहें. Strategic sourcing and warehouse management system. Like warehouse is where you keep the inventory, where you keep the things, and warehouse management system is computerized system. warehouse जैसे ERP होता है आपका, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वो सारे का सारा एक सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम. वेयर हाउस मीन्स योर इन्वेंट्री. सो वेयर हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, वो सारे का सारा उसका ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नाउअडेज, स्पेशली इन द लॉजिस्टिक्स. अमेजॉन वगैरह का वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इन्वेंट्री ट्रैकिंग, पिकिंग अप, पैकिंग और सप्लाई करना, एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड. लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स मीन्स कि मेरे को उससे लेना देना नहीं, मैं तो पब्लिशर हूं. इफ यू वांट टू परचेज अ बुक फ्रॉम मी, I can sell that book to you, I am a publisher, but Amazon is a third party logistics for me. Amazon will take an book from me and give it to you. So that is third party logistics. Supply chain visibility, basically tracking and monitoring the flow of goods and information, that is called supply chain visibility. Transportation management system, software जो ये पता लगाता है कि which transportation route is going to give you the quick result. Warehouse management system, as I told you. Now टेक्नोलॉजी एंड डाटा में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है विच इंटीग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटायर इंफॉर्मेशन फ्लो. like one department connected with another department connected with another department. So entire enterprise, entire organization, basically resource of entire organization are well planned. Resource, human being is also one resource. So it is an integrated information system or software through which you get to know about everything. I give you an example of hospital. Suppose patient goes to some desk and he says that I was मेरे को सर्विस मिल रही थी, एंड द मोमेंट यू एंटर द नंबर ऑफ दैट पेशेंट, जो नंबर आपके बिल पे दिया हुआ है, यू गेट टू नो एवरीथिंग. लाइक इस पेशेंट का ये टेस्ट हो चुका है, ये डॉक्टर उसको देख चुका है, अब इसका ये पेंडेंसी है. सो किसी भी डेस्क पे आप जाओ और सारा इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाए. दैट इज ERP. MRP is related to material. So material managers are more dealing with this. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है. ERP बहुत ही ब्रॉड है और उसी का एक पार्ट MRP होता है जो मटेरियल से रिलेटेड है, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है. देन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन and detail a plan about the production. I mean how much quantity, delivery date, how much we have to prepare, that is the master production schedule. उसी का एक part bill of material होता है which list all the component, part, raw material which I need to produce. तो bill of material is like quantity, how much quantity I am to produce, उसके लिए raw material कितना चाहिए, कितना component चाहिए, कितना quantity चाहिए, सब कुछ वो bill of material में होता है. And what I want to basically manufacture. So if I want to manufacture one pen, तो उस एक पेन को बनाने के लिए मेरे को कितना मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, that is a bill of material. And because the name is bill, it has a cost also. So typically suppose I want you to prepare a bill of material for a chair. That means उस चेयर को बनाने के लिए कितना वुड चाहिए, कितना लेदर चाहिए, कितना रबड़ चाहिए, जो भी है, कितने नेल्स चाहिए, वो सारा आपने लिखना है. और आपने ये भी लिखना है कि एक चेयर विल कॉस्ट यू दिस मच. एंड मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज प्रोडक्शन, डिलीवरी डेट्स, कब स्टार्ट करोगे, कब कंप्लीट करोगे. दिस इज हाउ दीज 4 टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू. इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ऑब्वियसली एवरीथिंग यू हैव टू राइट. एंड लीड टाइम आई डिस्कस विद यू, कितना टाइम लगता है आपको सारा. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, this is basically only for tracking the things through radio waves. Internet of things, you know the meaning of Internet of things, like the real term activities which you are doing using the internet. Real time data collection and analysis using the internet is Internet of things. A typical example of Internet of things is like you purchase something
and the information goes to the manufacturer that one item from the retail outlet is already purchased. मैं रिटेल शॉप चला रहा हूँ और जो कोड होता है QR कोड जिसे मैं पेमेंट करता हूँ, so the moment some customer takes one particular item from my shop, the information directly goes to the manufacturer कि ये item चला गया है. This is Internet of Things. That means using the technology you are doing real time activities. Big data analysis is data science. तो ट्रेंड पैटर्न सारे का सारा पता लग जाता है, what customer wants and how he is going. Now some important terms are obsolescence. जैसे कोई चीज अब आउटडेटेड हो गई है, अब उसका यूज नहीं है. बुलविप इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट इज रिलेटेड टू डिमांड वेरिएबिलिटी. जैसे से आप सप्लाई चेन में आगे की तरफ जाते हो तो डिमांड वेरिएबल, आपकी डिमांड की वेरिएबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसका एम्प्लीफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है. बुलविप इफेक्ट इज दैट ओनली. इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा होता क्या है. नाउ वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, सप्लायर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, बेसिकली कस्टमर के लोकेशन पे होती है, बट यू नो हाउ सप्लायर इज गोइंग टू सप्लाई यू. सो इवन कस्टमर नोज दैट सप्लायर हैज इन्वेंट्री एंड हाउ मच ही कैन गिव यू. Right, so vendor management system also is a very important system. So entire vendor का life cycle from sourcing and selection to monitoring and contract management, वो vendor अपने आप सारे का सारा उसका management system देखता है. Online purchase, online auction, that is e-procurement. Blockchain is a technology जो आप क्रिप्टो करेंसी में भी यूज करते हो, और the purpose of blockchain technology is to improve the transparency and security. Blockchain technology is the emerging technology like artificial intelligence, machine learning, data analytics, big data, deep learning. All these things are basically blockchain, emerging technologies, and blockchain is one of the examples. The advantage of blockchain is like transparency बहुत अच्छी रहती है, authenticity रहती है, trust रहता है आपको अपने सारे के सारे वर्क में. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स. मटेरियल मैनेजमेंट का कौन सा कोर फंक्शन नहीं है? ओके, प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल भी है, वेयर हाउसिंग भी है, सेल्स फोरकास्टिंग. सो सेल्स फोरकास्टिंग इज मोर रिलेटेड टू सेल्स फंक्शंस एंड मार्केटिंग. अदर्स आर कोर फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट? ऑब्वियसली इन्वेंट्री को होल्ड करने में खर्चा आता है, and I want to minimize this cost. That is the main goal of effective inventory management. Minimum level की inventory रखना important है so that holding cost minimum हो जाए. Storage cost, insurance, obsolescence. You know what is obsolescence? मैंने आज मेडिसिन रखी है अपनी दुकान पे और उसका एक्सपायरी डेट भी निकल गया, ऑब्सोलीट हो गया वो. Now it will not be used. Similarly, perishable goods जितनी भी हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एवरीथिंग का शेल्फ लाइफ होता है. सो इफ इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, ऑफ नो यूज टू मी. न्यूज़पेपर, इफ आई एम ए न्यूज़पेपर सेलर बॉय, तो मैं जितना न्यूज़पेपर मेरे पास आ जाए वो आज बिकना चाहिए, अदरवाइज अगले दिन कोई नहीं लेगा उसको. सो यू नीड टू नो दैट. मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ऑब्वियसली फॉर्कलिफ्ट. बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? Detailed list of all parts, components, raw material to produce single unit of finished product. मैंने आपको एक चेयर का एग्जांपल दिया था कि एक चेयर बनाने के लिए कितना वुड, कितना पैसे लगेंगे, कितना लेदर, कितना पैसा लगेगा, कितना रबड़, कितना पैसा लगेगा. दैट इज बिल ऑफ मटेरियल. जस्ट इन टाइम. As and when it is required, you will take it. Which of the following is not a core function of ERP system? ERP system. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट भी होता है. फ्यूचर मार्केट ट्रेंड वो बेसिकली आपका फोरकास्टिंग है, दैट इज नॉट डन.
फाइनेंशियल पार्ट होता है ईआरपी में, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, कस्टमर रिलेशन भी होता है. व्हाट इज एमआरपी? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. ईआरपी और एमआरपी में क्या रिलेशन है? ईआरपी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर ऑल रेलिवेंट डाटा, बिल ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, सब कुछ. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में भी उसी का हेल्प होता है. तो एमआरपी कैलकुलेशन के लिए यू नीड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. सो ईआरपी इज एक्चुअली अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. ईआरपी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. When you integrate MRP with ERP, what happens? Improved inventory accuracy, yes, because database is there from ERP. Reduced lead times, yes, because you real time data you have. Production cost gets reduced. Customer service will be better. Obviously all these benefits. What is the primary purpose of bill of material within an ERP system? To track employees attendance, okay, to manage customer relation, okay, to define structure of product and its components, yes, to generate financial report, yes. So actually bill of material is nothing but components और कितना quantity चाहिए और structure of a product, इसलिए because you need to know how you are to make the final product. All the components, sub assemblies, raw material required for production, that everything gets mentioned here. So structure of product और उसके components आप mention करते हो. Master production schedule क्या होता है? Basically a schedule for the production of finished good. Master production schedule, I mean everything is there. How you want to produce, which machine it will go, and after that where it will go. ये सारी की सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया that what are the things we have done this. पहले बिल ऑफ मटेरियल बनाते हो तुम और फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बिल ऑफ मटेरियल में जो लिखा होता है उसके बेस पे सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है. So whatever the components you have mentioned in bill of material, so bill of material is prepared for particular one item, finished item you want to make. Suppose you want 100 of such type of items, then you know this is the kind of material which will be required, this is the input required, these are the things required. So master production schedule will take care of that all. So सबको वो क्या क्या requirement है वो बताता है फिर उसमें. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के लिए ऑब्वियसली मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल आर इंपॉर्टेंट एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल रिक्वायरमेंट, बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर मेकिंग इन्वेंट्री इज अबाउट मटेरियल. कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मटेरियल. Right, so these were some questions. So friends, the purpose of this lecture was to know like क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें. मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो आपका एग्जाम है उसमें मटेरियल मैनेजमेंट में क्या आएगा और क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कितना हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें गो थ्रू करना है, लाइक बिल ऑफ मटेरियल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, सॉरी, मटेरियल एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. सो बिल ऑफ मटेरियल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये तीनों के बीच में लिंक क्या है एंड हाउ इट इज फर्दर लिंक्ड विद ईआरपी. तो ऐसे बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में आपने पढ़ी आज, उसका डिटेल में वीडियोस और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. और उसके बेस पे देन कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चन, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर राइटिंग दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड का मटेरियल मैनेजर का जो एग्जाम है
क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने इस हर एक टॉपिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कर लिया, मेरे को लगता है 50-60 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मटेरियल मैनेजमेंट में, जो अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो आई एम वेरी श्योर यू विल डू गुड इन योर exam and you will surely get into Coal India Limited. So keep watching all the topics which are covered on in your PDA, and I'm sure you'll do good in your exam. Thank you.